Good morning, students. Today we are resuming our chapter from page number 10. So, students, पहले हमने लर्न किया था what is intellectual ideas and how intellectual ideas are affecting the sociology and society. And now we learn about the material ideas. किस तरह से material ideas ने sociology को form किया. So we learn about the industrialization, what is industrial revolution और किस तरह से industrial revolution ने हमारी society को change किया. यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आ रहा है कैपिटलिज्म. सो कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर प्राइवेटली ओन एंड ऑपरेटेड फॉर अ प्रॉफिट. This means that everybody will work for their profit and every will have interest on the profit. And in this capitalism, government will not interfere in your profit. So this is capitalism. And second is industrial revolution. Now the second is industrial revolution describes the historical transformation of tradition into modern society by industrialization of the economy. तो यहाँ हमने इकोनॉमी बनाने के बारे में सोचा, किस तरह से ट्रेडिशन से शिफ्ट होकर हमने मॉडर्न सोसाइटी में स्टेप अप किया. वो हमने स्टेप कैसे लिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन से. Now second thing, it defines the feature in increasing per capita production made possible by the mechanization of manufacturing and other processes that were carried out in factories. So this means that कि पहले क्या था, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉटर क्या करता था, अपने घर पे जितने भी यूटेंसिल्स था वो बनाता था. एंड नॉर्मली उस टाइम पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था. फॉर एग्जांपल 10 to 20 पॉट्स अ डे और समटाइम्स लेसर देन दैट एज वेल. सो ये सब काम क्या थे? ये होम बेस्ड थे, स्मॉल लेवल पे थे, या हम इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी बोल सकते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं, वो छोटी फैक्ट्रीज़ जो कि घर पर सेटअप की जाती हैं. तो पहले ये छोटे लेवल पे काम होता था, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तब यही लार्जर स्केल पर होने लग गया. सो ऑब्वियसली फैक्ट्री हमने सेटअप कर दी है तो हमें वहाँ लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, हाइजीन लेवल भी देखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, एक एडमिन ब्लॉक होगा. सो अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसेस ऐड कर दिए गए. सो दिस इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Page number 10.7, the material uses that went into the making of sociology. The Industrial Revolution has based upon a new dynamic form of economic activity, that is capitalism. This system of capitalism became the driving force behind the growth of industrial manufacturing. Capitalism involved new attitudes and institutions, entrepreneurship now engaged in the sustained systematic pursuit of profit. The markets acted as the key instrument of productive life, and goods and services and labor became commodities whose use was determined by rational calculation. The new economy was completely different from what it replaced. England was the center of industrial revolution. In order to understand how far-reaching the change industrialization brought about was, we take a quick look at what life in pre-industrial England was like. Before industrialization, agriculture and textile were the chief occupant of the British. Most people lived in villages like in our own Indian villages. There were peasants and landlords, the blacksmiths and the leather workers, the weavers and the potters, the shepherds and the reapers. Society was small, it was hierarchical, that is, the status and the class position of different people were clearly defined. Like all traditional societies, it was also characterized by close interaction. With industrialization, each of them features changes. दिस मीन्स दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही एक न्यू वे, एक न्यू पैटर्न के साथ आया था जिसने हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप किया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले किसी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में नहीं अच्छे से पता था, एंड पीपल वर नॉट इवन अवेयर ऑफ वर्ड कैपिटलिज्म. सो इस सिस्टम ने लोगों में क्या लाई? ग्रोथ लाई. एंड स्पेशली ग्रोथ कहाँ आई?
सोसाइटीज़ में आई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आई, किस तरह से कहाँ हम स्मॉल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे वहीं हायर लेवल पे हो गया। अब कैपिटलिज्म भी इन्वॉल्व हो गया, उससे क्या हो गया, लोगों ने खुद अर्न करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट हो गया लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स आ गए, जो लोग घर पे छोटा काम करते थे वो अब एक लार्जर स्केल से अपना काम लेकर मार्केट में लॉन्च हो गए हैं। जो एक स्मॉल स्केल मार्केट्स थी वो आज लोगों के लिए प्रोडक्टिव लाइफ बन गई, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो गई। अब जो लोग तो स्किल्ड थे उनको तो काम करना आता था वो कर रहे हैं, बट जो लोग अनस्किल्ड थे या जिनको काम उस लेवल पे नहीं करना आता था, दे वर शिफ्टेड टू लेबर, वो लेबरर्स बन गए। कमोडिटीज़ लोगों को अवेलेबिलिटी हो गई, अब न्यू इकोनॉमी आ गई है, तो डेफिनेटली लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा प्रोवाइड हो गई हैं जितनी लोगों को चाहिए थी। एंड नॉर्मली उस पर्सन के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थी जिस पर्सन के पास कोई ना कोई स्किल था। सो अब लोग क्या करने लगे, प्रॉफिट मोटिव पे शिफ्ट हो गए हैं, नए नए मेथड्स लेके आने लग गए प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेबर बिकेम कमोडिटी दोज यूज वर डिटरमिन्ड बाय रैशनल कैलकुलेशंस। सो दिस मीन्स कि उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ में आने लग गए जो कि पहले लोग सोचते भी नहीं थे। एंड सेकेंडली किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेबरर्स को, लेबरर्स बिकेम कमोडिटीज़, लेबरर्स भी एक तरह से कमोडिटीज़ बन गए। कैसे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंटर। अब आप पेंटर के पास जाते हैं, डायरेक्टली उससे पूछते हैं दैट हाउ मच यू विल टेक पर डे, हाउ मच यू विल चार्ज फॉर अ डे। अब जितना भी उसने चार्ज आपको बताया तो वो चार्ज उसका क्या हो गया, कमोडिटी चार्ज हो गया। तो इस तरह से ये लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिल गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज बिगेन इन इंग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद इंडिया में आया। सो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है कि पहले क्या था, इंग्लैंड में भी बहुत छोटे छोटे विलेजेस थे, वहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था वहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया जाता था, ब्लैक स्मिथ्स थे, लेदर वर्कर्स थे, वीवर्स, पॉटर्स, शेफर्ड्स, ड्राइवर्स, इस तरह के लोग थे वहाँ पर भी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद इन सबको भी एक नई इंपॉर्टेंस मिल गई। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी ऐसा ही था, हमारी जो सोसाइटीज़ थी वो छोटी छोटी थी, स्मॉल थी, एंड यहाँ पर क्या था, एक हेरारिकल था। अब हेरारिकल क्या होता है कि हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग हमें काम बता दिया जाता है, अगर तो हम अपर कास्ट के हैं हमें उस वे से काम दिया जाएगा, अगर हम लोअर कास्ट है तो हमारे पास लोअर कास्ट आएगा। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ये हेरारिकल जो हमें स्टेटस दिया जाता था वो वैनिश हो गया। One of the most fundamental aspects of the new order was the degradation of labor, the wrenching of work from protective context of guild, village, and family. Both the radical and conservative thinkers were appalled at the decline of the status of the common laborer, not the mention the skilled craftsman. Urban centers expanded and grew. It was not that there were no cities earlier, but their character prior to industrialization was different. The industrial cities gave birth to a complete new kind of urban world. It was marked by the sort and grim of factories, by overcrowded slums of the new industrial working class, and bad sanitation and journal squalor. It was also marked by new kind of social interactions. The Hindu film song on the next page capture both material as well as the experimental aspect of city life from the film CID 1956. Students, read the song yourself as it is not that important, but you need to understand. I'll paraphrase this song on the next page. Industrialization gave us ample of facilities and advantages, but it also bring ample of problems as well. In the previous page, we learned about the importance of labor, but because of industrialization, there were ample of problems to the labor. First was degradation of labor. Labor की जो value थी, जो status था, वो कम हो गया. उनके जो वर्क आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए, उनकी वेजेस बहुत ज़्यादा कम थी, उनको सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी क्योंकि उनके पास सिवाय लेबर के कोई और काम नहीं था। एंड ओनर्स को पता था, एम्प्लॉयर्स को पता था कि इन्होंने कहीं नहीं जाना है, सो
वॉज डन बाय देम वॉज एक्सप्लॉयटेशन। तो उनके साथ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होती थी। तो लेबर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्हें कभी भी कंप्लीट वेजेस नहीं मिली है। इससे क्या हुआ, लेबर का जो स्टेटस था, लेबर वर्क था, वो कम होने लग गया, लेबर स्टेटस डिक्लाइन होने लग गया। प्लस इसमें मेंशन नहीं किया गया बट स्किल्ड मैन का जो काम था वो भी वैनिश होने लग गया। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं चाइना की। चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों इतने चीप है, बिकॉज वो मैसिव अमाउंट में बनते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू स्किल्ड क्राफ्टमैन, वो पर डे के कुछ एक या दो प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द वे ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट। सो इस वजह से, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली होते हैं, तो उसकी जो स्टेटस थी वो डिक्लाइन होने लग गया। पीपल वर नॉट गोइंग टू स्किल्ड मैन, टू क्राफ्टमैन टू बाय देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे वर कॉस्टली, एंड सेकेंडली दे यूज टू टेक एम्पल ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अर्बन सेंटर्स भी अब डेवलप हो रहे थे, उनके करेक्टर्स डिफरेंट बन रहे थे, क्योंकि रूरल एरिया के लोग मूव कर रहे थे अर्बन एरियाज़ में। डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स में स्पेस कम थी, सो लोग स्लम्स में रह रहे थे, या जहाँ एक छोटा सा रूम है वहाँ 10 to 15 लोग एक रूम में रह रहे थे। तो दिस वॉज अ प्रॉब्लम विद द लेबरर्स एज दे वर हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ सैनिटेशन। वहाँ हाइजीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।